Trinity B1 ISC1 4 Skills Test. CELT Secure English Language Tests. B1 English Test ISC1 Skilled Worker, Health and Care Worker, Scale Up Worker, Student Visas. जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैन यू जी हियर? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। अच्छा चले, आपके बहुत सारे सवाल थे, उन्हीं सवालों से स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताएं, आप क्या इस लेसन में लर्न करना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, या अगर आप वो बता दें मुझे तो फिर मैं स्टार्ट कर लूँगी। एक तो मुझे आपने वो लिख के देना है इंट्रोडक्शन, जो मैंने उनको जाके करना है स्पीकिंग के अंदर। इंट्रोडक्शन लिख के देना मुझे समझ नहीं आया। मतलब जिस तरह आप कहती हैं कि हॉबी या उसके 4 पॉइंट्स, इस तरह वो होगा। मैं उसको फिर सारा रिव्यू कर लूंगा एक दफ़ा। वाचिंग मूवी, ओके। ट्रैवलिंग। हम्म। हम्म। कितने 3 पॉइंट्स हो गए? वन मोर। Watching films. And then you said you like working out. Working out is like ईटिंग फूड आउटसाइड। and playing sports, you said. Okay, these are the 4 points. And now I will take a photo of this and send it to you, and then we'll do a 6 minutes mock test. ये जो टेस्ट होता है ये होता है आप के लिए 6 मिनट लंबा, ठीक है। और इस टेस्ट ओके के अंदर पहले एग्जामिनर 4 मिनट के लिए सवाल करता है इन टॉपिक पॉइंट्स से रिलेटेड। ओके ये जो टॉपिक पॉइंट्स आपके सामने 4 मिनट के लिए, एग्जामिनर का काम है आपको सवाल करे, कभी कभी प्लेइंग स्पोर्ट्स के बारे में, वर्किंग आउट के बारे में, कुछ भी, ठीक है। और फिर 4 मिनट के बाद एग्जामिनर की अपनी चॉइस का एक टॉपिक होता है जिसके अंदर वो ओके आपसे सवाल करता है और आपको कहता है आप भी मुझसे सवाल कर सकते हो। वो कॉन्वर्सेशन टॉपिक होता है। ओके। जी। इसके बाद वो होता है हाँ, फिर छह वो मिनट टू में। मिनट्स का हाँ, छह वो टू मिनट मिनट्स का होता 6 मिनट में इस तरह से टेस्ट खत्म हो जाता है। 4 मिनट की डिस्कशन होती है जो कि टॉपिक पे होती है जो आपने चूज किया हुआ होता है, और फिर 2 मिनट की कॉन्वर्सेशन उस टॉपिक पे होती है जो कि एग्जामिनर चूज करता है। ठीक हो गया। तो इसके बाद फिर मतलब स्पीकिंग खत्म हो जाता है। जी। ठीक हो गया। जो लिस्ट। Start. This जी। is Trinity College London ISC 1B1. My name's Angelina, and I'm your interlocutor for your speaking and listening exam today. What is your full name? माय नेम इज रईस उमैर। What may I call you? ऐसे अगेन प्लीज। What may I call you? What can I call you? फॉर स्पीकिंग। You can call me Race. What can I call you means what is the name that I can call you by? This is the meaning. What can I call? ओके ओके। उमैर। Where do यू you कॉल come मी from? उमैर। Where do you come from? आई कम फ्रॉम पाकिस्तान। How long it has been you've lived in the UK? इन 1 year। What do you like about living here? UK is a big and busy city. Too much opportunity here in about business. Mm-hmm. Weather is nice. Mm-hmm. People is very uh, loving to each Mm-hmm. other. Mm-hmm. Uh, Too much hard work here, then you make too much money. Mm-hmm. Mm-hmm. Life is a Hmm. life circle is very good. Like any type of field in business. Mm-hmm. Mm-hmm. UK is a very old and historical country. Mm-hmm. It's very famous in all over the world. Mm-hmm. Mm-hmm. UK rules and regulation very strict and
comfortable for anybody. He's come. He Hmm. Beautiful, beautiful. Thank you. In which part of UK do you live? God, what's the meaning of this In point? which part, P-A-R-T, part means area. In which area Okay. of UK do you live? I live in Stoke-on-Trent, near to Manchester, middle of Manchester and Birmingham. Okay, that's very nice. What do you like about living in Manchester? Manchester is a second, I think, big city in UK. Too much Pakistani culture Mm-hmm. in Manchester. Big business opportunity in Manchester. Mm-hmm. Like desi food find everywhere. Same like Pakistani market, Winslow Road. It's feeling like you walk in Pakistan street. Very Mm-hmm. similar, like this area, very similar, same like Pakistan. Mm-hmm. Oh, I that's love Manchester. oh, that's beautiful. Okay, thank you. Now, could you please tell me about your topic's title for today? Uh, my topics today, my hobby, What are your apologies, what are your four topic points? watching films, traveling, uh, eating food, workout. Okay, all right. Can you no can you repeat your points? What are your topic points? Traveling, Okay, workout, okay, watching film, okay. uh, playing sports, All right. What kind of sports do you like to play? cricket. How often do you play cricket? Yes, yesterday. How often do you play cricket? How many times? Once in a week, twice in a week, sometimes. How often do you play cricket? Uh, every on day, every weekend on Every Friday. weekend. All right. On Friday. How often? Please write this word down. How often? H-O-W, how? O-F-T-E-N, often. Often means how many times? Kitni bar. Please write it down. OFTE and often. Yeah, often or often. You can also call it often if you would like, but examiner will say often. Okay. How often in meaning Urdu? How many times? Kitni bar. How many times? Like how many O- times do you eat pizza? Once in a week, Okay. twice in a week, sometimes. How often pizza? How It means often do you? kitni bar. How many It times? means okay. How many times? So how often do you play cricket? Every weekend on Friday with my friends, sometime with my family, sometime with my neighbors. Anybody come and join and playing cricket, enjoy this moment very well on every weekend. But I'm just asking you how often, okay? So how often means just how many times, once or twice in a week, Uh, every weekend. Ma'am, invigilator, say how often, how many time, How often? how often, OFE, often. Okay, I remember this word. All right, okay. Can you please tell me Uh, about a recent experience when you traveled? Recent travel, I'm going to, I'm recent travel to Dubai. Very good experience. I go to Dubai last uh, in September. Nice weather, nice city. I
enjoy every moment in Dubai with my friends. Too many friends live in Dubai. He's all a businessman and spend good quality time with with those friends. I spent 5 days in Dubai. Mm-hmm. I'm every evening going to beach for some see good views, sunset, sunset views, nice wind, Okay, beautiful. What kind of films do you like to watch? action and comedy. I like action and comedy movies. All right, can you tell me about a film that you had seen recently? Indian movie, Which one? Pathan, All right, that's nice. So who was your favorite character in the film? Shah Rukh and John is my favorite character. Okay, that's very nice. Thank you. Can you please tell me what kind of exercise do you enjoy doing? I like cardio and bodybuilding. All right. And how often do you exercise? In a week, 5 days. Uh, uh, just Saturday, Sunday off. Hmm, that's nice. Thank you. This is the end of part one. I think you can talk, sir. Very good. Okay. Not difficult for you at all. Very easy. Very easy. रवीन ये मैं कवर कर जाऊंगा थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करूं तो इनके पॉइंट्स थोड़े मैं लिख लूं तो कवर कर You can जाऊंगा easily pass. You don't have to write any points. The only problem ओके is understand the questions. जैसे कि मैंने ओके आपसे पूछा व्हाट कैन आई कॉल यू, क्योंकि लंबा नाम होता है तो एग्जामिनर पूछता है मैं आपको क्या बुला सकता हूं। ये चीज होता है कितनी बार। इसके अलावा आपको सारी समझ है। यू हैव सो मच एबिलिटी कि आप एक बात को बना के स्टोरी को करके सब कुछ कर सकते हो। एग्जामिनर आपका डेफिनेटली हाई पास आएगा स्पीकिंग में, या हाई पास नहीं आएगा तो मेरिट आ जाएगा, लेकिन चलो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते स्पीकिंग। इंशाल्लाह अब आगे आ जाता है सेकंड पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। इसके अंदर आप भी एग्जामिनर से सवाल करेंगे, ठीक है? तो टिप इसमें यह है कि अगर उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करेगा तो जो सवाल एग्जामिनर आपसे पूछेगा ना, वो ही सवाल आप भी एग्जामिनर से यू लाइक बॉडी बिल्डिंग नहीं नहीं, चल वो सिंपल अपनी पसंद का टॉपिक चूज करेगा ना, अच्छा वो वो पता अपनी करेगा। पसंद का टॉपिक बोलेगा Huh. Now it is part two. In this part of the test, I will choose a topic of my choice. Let's talk about rules and regulations at your work. So, can you please tell me what kind of rules do you have at your work? आई लाइक आई लाइक द रूल What से kind अगेन of rules आई and कैन अंडरस्टैंड regulations do you have at your work? What kind of rules and regulations do you have at your work? my my main regulation in my work on my work punctuality Hmm, loyalty hmm, with colleagues hmm, every day uh, go on time mm-hmm, your own work very honestly mm-hmm. you share problem to anyone he available in your work area Mm-hmm. uh, sometime you give extra time on work Mm-hmm. sometime he pay me sometime he pay not but I still work extra he he said then I work extra every time Oh, that's nice. All right. So, can you please tell me, why do you think rules are important at work? uh, rule is important in every work because businessman makes rule then grow up the business you do not make rule you not grow up business
This is the main point of a business. Rule and regulation is very important uh, in every business, every field, every field of life, every field of business, in any city, every city, any country, every country. Rule is the most important part of any business. Oh, that's very true. Okay, all right. Can you ask me two questions about rules and regulations at my work? What your opinion about rules in any business? What are the rules and regulations? Repeat yourself. Uh, why rule is important any business? Well, rules are important for discipline, for success of the business, and for customer satisfaction. Yeah, right. Thank you. One more question, please. You not make rule, then you grow up the business. What your opinion about this? No, I don't think so. It is possible to grow business without rules. Thank you so much. You have Thank passed you. this test with a distinction. Congratulations. All right, sir. Thank you. Madam, distinction means? Distinction means a high pass. Okay. हाई पास ओके। अच्छा, अब Okay. कॉपी पेन अगर पास है तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, कुछ जरूरी टॉपिक्स के बारे में जो एग्जामिनर आपसे पूछ Okay. सकता है, ठीक है। जैसे कि ये जी, पहला हो गया रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके बारे में आपने बात की, ठीक है। ये लिसनिंग में लिखूं, लिसनिंग में? नहीं नहीं, स्पीकिंग की बात हो रही है सर। ये अभी भी मैडम स्पीकिंग ये सेकंड पार्ट, सेकंड टास्क स्पीकिंग का। जी, ये स्पीकिंग ही चल रही है अभी, लिसनिंग में तो रिकॉर्डिंग चलेगी ना, रिकॉर्डिंग तो चली नहीं है। अच्छा मैडम बोले आप। हाँ, स्पीकिंग चल रही है अभी, ठीक है। जिसमें पहला टॉपिक आपने चूज कर चुके हैं, जिसमें आपने चूज किया माई सेल्फ। उसमें आपने ओके। 4 पॉइंट्स चूज किए, जिसमें वर्किंग आवर है, आपने चूज ओके। किया है वॉचिंग फिल्म्स, आपने चूज किया प्लेइंग स्पोर्ट्स, आपने चूज किया ट्रैवलिंग, ठीक है। ओके। उसके बाद पार्ट 2 आ गया स्पीकिंग का, जिसमें एग्जामिनर ने अपनी पसंद का टॉपिक चूज किया जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड था। अब ओके। इसमें बता सकती हूँ आपको, ऐसे सिर्फ 5 ही टॉपिक हैं जो एग्जामिनर जिनमें से चूज कर सकता है, उससे बाहर चूज नहीं करता। जिसमें एक है रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके घर पे कौन से हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस एट होम, रूल्स एंड रेगुलेशंस एट वर्क, या रूल्स एंड रेगुलेशंस इन योर कंट्री, इसके बारे में पूछ सकता है। दूसरे में आपको फैशन के बारे में पूछ सकता है कि आपको किस क्वेश्चन। तरह के कपड़े पहनना पसंद है, या ओके। किस तरह के कपड़े पहनते हैं जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है या कुछ ऐसा। उसके बाद ओके। एग्जामिनर आपसे हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में पूछ सकता है, बहुत जरूरी टॉपिक है, जिसमें वो आपसे एक्सरसाइज के बारे में पूछ सकता है, या आप कोई स्पोर्ट्स प्ले करते हैं तो स्टे फिट, उसके बारे में पूछ सकता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है स्पेंडिंग मनी के बारे में, ठीक है, कि आप, स्पेंडिंग मनी। हाँ, स्पेंडिंग मनी, हाउ डू यू स्पेंड योर मनी। तो उसमें आपने कुछ ज्यादा नहीं करना, बस यही बताना है कि आप कहाँ कहाँ पे अपने पैसे को स्पेंड करते हैं। या वो आपसे पूछ सकता है हाउ डू यू सेव मनी, आप पैसे बचाना आपसे बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। तो वो तो आई थिंक आप बता ही लेंगे। मैडम वही यूज करेगा ना, वो ऑफन ही यूज करेगा ना, वो ऑफन। नहीं नहीं, वो ये बोलेगा कि हाउ डू यू सेव मनी, आप पैसा कैसे ओके। बचाते हो, ठीक है। फिर ओके। वो बेबी पूछ सकता है हाउ ऑफन डू यू सेव मनी, आप कैसे, कितनी बार हफ्ते में, मंथ में एक बार कितनी बार सेव करते हो। वो आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द बेस्ट वेज ऑफ सेविंग मनी, पैसा बचाने के सबसे अच्छे तरीके कौन से हैं, इस तरह से। मैडम ये मुझे जरा लिखवा दें सारा। डिफरेंट वेज ऑफ सेविंग मनी। डिफरेंट वे, डिफरेंट वे। ओके। यस मैम, कैरी ऑन। अच्छा, इसके अलावा वो देखिए डिफरेंट वे, उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज, लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। अब लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज में भी आ जाता है, आपसे वो पूछेगा डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं,
तो क्या तरीके हैं आपको लैंग्वेज लर्न करने के, आपके लिए कैसे आपको अच्छा लगता है? ठीक है, जैसे कि बाय लिसनिंग म्यूजिक, बाय वॉचिंग फिल्म्स विद सबटाइटल्स, या टॉकिंग टू नेटिव स्पीकर्स, लिविंग अब्रॉड, रीडिंग बुक्स, ओके, टेकिंग एन ऑनलाइन क्लास। क्या आप तरीके इस्तेमाल करते हैं टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज? समझ आया कुछ आपको? अरे मैडम एक दफा रिपीट कीजिएगा। हाँ जी, डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। ये लिखने पे आप गौर ना इतना करें, अब सुन लें हम्म, तो समझ लें। ये क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन, foreign फैशन, language से हेल्थ एंड फिटनेस। how do you learn a foreign language? I learn a foreign language by watching films, by listening to music. watching film with titles, reading हाँ books, हाँ हाँ meet outside with uh, peoples, communicate with English, then I learn English. हाँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी कह सकते ठीक हो तो क्या हो गया? ओके। हैं। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ऐसे कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन आई थिंक एग्जामिनर आपसे एंटरटेनमेंट के बारे में सवाल कर सकता है। ठीक है, दैट व्हाट इज योर फेवरेट एंटरटेनमेंट? आपको किस तरह की एंटरटेनमेंट जो है वो पसंद है? वॉचिंग फिल्म्स के बारे में सवाल कर सकता है, आप कैसी फिल्में देखते हैं, वो तो आपको पता ही है, आपने बताया मुझे एक्शन फिल्म्स। फिर आपसे सवाल कर सकता है, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक? किस तरह का ओके, म्यूजिक आप पसंद करते हैं? ठीक है, आपसे पूछ सकता डिपेंड हो। मैं मतलब ऐसा मैडम, अगर उसने पूछा व्हाट टाइप काइंड ऑफ म्यूजिक यू लाइक, आई लाइक म्यूजिक समटाइम Punjabi rap, sometime English song, sometime loving song, depend on my mood, depend on weather, sometime depend on uh, uh, environment. That's the इस तरह कर आंसर। हाँ, देखिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको इंग्लिश आती है, जितनी इंग्लिश इस टेस्ट के लिए चाहिए उतनी आपको ऑलरेडी आती है। इतना घबराने ठीक की होगा। जरूरत नहीं है, आप जो भी ठीक दिन है। में आएगा बोल दीजिएगा। ठीक है। ठीक कोई है। ऐसी बात नहीं है, अगर ठीक हो गलत गया। होता तो मैं आपको जरूर बताती ना कि ये सही नहीं है। मैं आपकी ऑब्जर्वेशन आपने किया कि मतलब आपके मैं लिए इंशाल्लाह इसको कवर कर दूंगा। कवर क्या, आपने इतने अच्छे इसमें ले लेने। मैं देखिए, मैं रोज पढ़ाती हूँ ना, मुझे पता है कि कौन सा बंदा कर सकता है। जब मैं एक दफा आपकी ऑब्जर्वेशन, हाँ हाँ, हाँ। तो कह रही हूँ कि हो जाएगा, तो फिर यकीन कर लें, क्योंकि मैं बार बार, ठीक है। ठीक। ठीक है। क्योंकि जो सॉरी एक सॉरी। एक और चीज याद रखिएगा, जो चीज आपने सीखी हुई है कोई आपसे ले नहीं सकता। जितनी इंग्लिश आप बोलते हैं, आपने सालों लगाए हैं ये सीखने में, कोई आपसे ले ठीक सकता हो है ये गया। चीज? नहीं ले सकता। ना बात तो एक्सपीरियंस तो टाइम के साथ ही आता है हर नहीं, चीज का। जो आता है आपको, इतनी हम्म। वोकेबलरी है आपकी, आपने देखे, मैंने कोई खुद से थोड़ी आपको आपको कर रही हूँ। मैंने 6-7 मिनट आपके साथ वो टेस्ट किया है, तो मुझे आइडिया हो गया कि आप कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है कि कॉन्फिडेंस की बात है। अब आप कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे तो बेहतर हो जाएगा, अगर डरते रहेंगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, ठीक हो गया। अब देखें, इसके अलावा फैशन हो गया, सेविंग मनी है, स्पेंडिंग मनी है, फ्री टाइम एक्टिविटीज है, जिसमें एंटरटेनमेंट आ जाती है। ज्यादातर म्यूजिक और फिल्म्स के बारे में एग्जामिनर सवाल करता है। फिर हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में ऑलरेडी बोल दिया है। फॉरेन लैंग्वेज के दूसरा कोई, या फिर आपसे कोई रीसेंट सेलिब्रेशन के बारे में पूछ सकता है, राइट? टेल मी अबाउट अ ठीक। रीसेंट सेलिब्रेशन दैट यू हैव हैड, मे बी यू हैव सेलिब्रेटेड अ बर्थडे पार्टी, मे बी आपने कोई ईद सेलिब्रेट की है, या कुछ भी ऐसा किया है, उसके न्यू ईयर। बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक हो गया। ठीक है, तो ठीक। मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कैन यू शेयर अ रीसेंट एक्सपीरियंस ऑफ celebrating any special occasion? I recently enjoy two uh, events. Hmm. One occasion is a New Year. My friend come from Pakistan in UK, and I go to London. Then Hmm. enjoy 2 nights with my friends. See, me and my friend going to central London and enjoy this moment very well. जी। And
last month in January, my nephew birthday. Enjoy at हम्म home हम्म with family together. A lot of fun with family, eating too much food, हम्म like Pakistani food, fast food, like pasta, that type of food. Enjoy. And this moment, these two moments, enjoy very well with friends and family and neighbors. हम्म ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वेरी नाइस। ठीक है, आपको कोई इशू ही नहीं है किसी टाइप का। ठीक है, Enjoy. आगे हो गया, आगे ये हो चुका है। अब